Morning, sir. Yes, good morning. Good morning, sir. Yes, good morning. So I welcome you all into the fresh IP class. Good morning, sir. Yes, good morning, everyone. So Morning, first of all, we will go with the revision what we have done, because now we have entered into the very crucial part of this data frame. So now it's very important that you concentrate also and try to learn each and everything very carefully. So first we will revise what we have covered yesterday. So who will help me out in revising what we have covered yesterday? Voluntarily, someone taking the responsibility. Yes, भव्या, मैं इधर से स्लाइड खोल रहा हूँ, so slide by slide you will be just revising what we have covered earlier. Yesterday we did about data frame. Data frame is a two-dimensional structure which consists of rows and columns. It is just like a table, and in this the size can be mutable, means we can change the size. We can add a column or a row, and the columns are of different data types. They may be of different data types. Yes. And there are the labeled axes, that is the field names, and the row names are given. And we can apply various mathematical operations on the rows and columns. And then we discussed about how to create an empty data frame. And then afterwards we discussed various ways of creating the data frame using. Yes, first like you concentrate on this particular slide and says accordingly. In this, create a data frame from list. So in this, the first line of coding is import pandas as PD1. So here we have used the import to import the pandas package. And pandas as PD1 means pandas now has two names. We can use it as either pandas or PD1. And then it is data1. We have entered the data in the form of list in this. And afterwards we have written df1 is equal to pd1 dot data frame. In brackets we have written data1. This is the syntax to create a data frame. So basically here in this particular slide we have used two methods. Basically methods तो एक ही है, दोनों में list है. So first we have a simple list, and in the second case we have discussed list within a list. Clear? So good, Bhavya. Now discuss the next slide. Yes. In this, we have been given the method to create a data frame from a dictionary or a list. In the first example, it is the case of a dictionary. So we have used the dictionary to create a data frame. So in this, the name is the key, and whichever keys are there, they are used as the column label. And the data. Just wait. Let's say so. Yes, मनत शर्मा, ये जो स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड के अंदर here the index values are this 1 and 2. ठीक है? So if I want to change these index value, what I need to do? How I can change these index values? सर जहाँ पे डाटा 1 लिखे उसके साथ आप इंडेक्स वैल्यूज लिख सकते हो. Yes. Very good. You know, clear. So basically now we can write our own index values by mentioning the index values, and clear. So in this particular slide we have basically focused on how to create the data frame from a dictionary. Clear? So familiarity with the dictionary is equally important. Clear? And in the bottom side you have seen that you can have, basically this example shows that you can have index values from your own side also. Now the next we have discussed basically list of dictionaries. So what is the meaning of list of dictionaries? का क्या meaning है इसका? Yes, Saksham. इसका word meaning क्या है? List of dictionary का क्या meaning होता है? सर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मतलब डिफरेंट डिक्शनरीज अगर एक कोड में यूज हो रही हो तो उनका लिस्ट बन जाती है.
Clear? So basically here in this particular example, we have two dictionaries within a list. So that's why the title have been framed in this particular example like create a data frame from a list of dictionaries, because a list is containing multiple dictionaries. So we can have 2, 3, any number of dictionaries within a list also. So its example we have discussed yesterday. Clear? Then we moved to ये discuss किया था हमने कल, that is how we can have series within dictionaries. Huh? No, sir. No. Clear? So No, we'll start from here onwards. Clear? That is here in this particular example, as you can see here कि इसमें dictionary के अंदर क्या किया हुआ है, dictionary के अंदर series का use किया हुआ है. जैसे हम most of the times हम क्या करते थे, in the previous examples we have seen कि key के साथ हम list को use करते थे. Now in place of list, you can see here we have made use of series. So we are already familiar with the series. So series is a function of pandas. It contains the values of the series and the corresponding index value. तो ये डिक्शनरी के अंदर फर्स्ट की है हमारे पास 1, और उसके साथ जो corresponding values हैं, they have been generated from a series. Then we have a second key value 2, and for this the values are generated through the series. Now in the second series we have how many values are there? 4 values are there, and corresponding we have 4 index values. So we can try to implement this one also. So you see here we are going to implement the code, and we'll be keeping it as PD rather than PD1. Yeah. So what are the steps are there? In the line number 1, we have basically imported our pandas package. In the line number 2 and 3, we have just created a series dictionary. And the important thing about this dictionary is that we have made use of series. For the first time, we have made use of series within a dictionary. Clear? So nothing very strange here. We are already familiar that the value part of the dictionary has been created with the help of series. तो यही एक नई चीज है इसके अंदर. So we can run this code. So PD1 is the problem. So as you can see, the first series में हमारे पास है कितनी index values हैं? We have 3 index values and 3 values are there. But in the second series, with the key 2, you are having 4 values. So that's why in the first series, one more for the index value D, NaN has been generated, because you know there is a mismatch between the first key and the second key. First key contains 3 value, and second key basically contains 4 values. So that's why to manage both the things, for the first key 1, we have added now NaN in place of this D. So this is how we have created a data frame from a, basically we have created from a dictionary, and within a dictionary we have made a use of series. Yes, इसके अंदर कोई question है किसी का? Any question you have? Basically, you know that now we have entered into a phase that where if you are practicing this, then you will be feeling very comfortable. अगर आप इसको just देखते रहोगे, so you will find within next couple of classes. So अगर तो आप इसकी practice कर रहे हो, इसको understand कर रहे हो, so then you will find this is very very easy. Clear? कुछ ऐसा इसमें difficult नहीं है, but the only key thing is there that we need to basically understand whatever we are discussing in the code. आपको हर एक step की clarity है.
ठीक है, मैथमेटिक्स में भी ऐसे ऐसे ही होता है, आप कोई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या साइंस में आप फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, सो यू वांट द क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप। तो अगर आपको क्लैरिटी है, यू नो, स्टेप बाय स्टेप वी आर एडिंग द स्टेप्स इन ईच क्लास। So this is what we have done, that is to create a data frame from the dictionary. The bottom part is that is few operations have been applied, so we will cover this part a bit later. We move to the next slide. So next slide is there, that is create a data frame from a text file. Abhi data frame is a very versatile basically data structure in Python. Clear? So you can see here in front of you there is a text file is there. This is a text file. तो text file को भी हम convert कर सकते हैं किसमें? Data frame. Clear? Now how this is done? You can say these are the contents of a text file. Clear? Now pandas is shipped with built-in reader method. So there are so many reader methods are there. Reader method का काम क्या होता है? To read the data basically. Clear? Like how to read the data from a text file, how to read from an Excel file, how to read the data from a CSV file. So you know we have different types of files. So Python reader has a built-in reader which can read the data from different types of files. Now presently we are discussing the case of a text file. Clear? So for example, which reader will be used here? For example, the reader pandas.read_table. So this reader will be basically used, this method will be used, seems to be a good way to read the a tabular data file. तो जो हमारे पास फाइल है उसमें tabular form में डाटा पड़ा हुआ है, and we want to convert that particular data to a data frame. मीन्स अगर हमारे पास फाइल में कोई टेबुलर फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ए डाटा फ्रेम। अगर वो रोज और एंड कॉलम्स की फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डाटा फ्रेम में। यू आर गेटिंग और नॉट? टेक्स्ट फाइल में हो सकता है किसी ने अपना ऐसे लिखा हो, इंडिया के ऊपर, दसुआ के ऊपर किसी ने ऐसे लिख दिया है, तो अगर उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट डाटा है तो उसको हाउ इट विल बी एबल टू कन्वर्ट? अगर उसके अंदर डाटा इस फॉर्म में पड़ा है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, so that data can be converted into a data frame. Clear? So as you can see in the example, this is the basically now 3 line of code it is there. First is import pandas. So this step is how to import pandas. We are already familiar with this particular step. Next step क्या है हमारे पास? A DF data frame has been created. So first we write pandas as a package, and then its method is read_table. So read_table is the method that is basically used to convert a text file into a data frame. और text file में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि text file में इस तरह का डाटा पड़ा हुआ है हमारे पास, that is in the form of rows and columns. बीच में क्या है? जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, उसके बीच में क्या है? स्पेस है। फिर नेक्स्ट कॉलम है, फिर उसके बीच में क्या है? स्पेस है, एंड देन वी हैव ए थर्ड कॉलम। क्लियर? नाउ फर्स्ट पैरामीटर क्या है इसके अंदर? द फर्स्ट पैरामीटर इज, इसके अंदर हमने पाथ, वी हैव टू एंटर द पाथ जहां पे आपकी क्या है? टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। यस, कौन करेगा मेरे को एक्सप्लेन, ये पाथ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म पाथ? यस, कोई बता सकता है पाथ का क्या मीनिंग होता है? Sir, it is the location of file in the PC. Yes. Very good answer. So it is basically a location of a file in our system कि आप में, आपके सिस्टम में वो फाइल कहां पे पड़ी है। So very good हर्षित। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहला पैरामीटर, दैट इज फर्स्ट यू हैव पाथ प्लस नेम ऑफ द फाइल with the extension of the file .txt. .txt means that it is a text file. Now the second parameter is equally important. Clear? What is this parameter is? Like delimiter. Delimiter होता है कि you know how we are going to basically differentiate between different columns. Now I have already told you now the first column is differentiated from the second column with the help of this space.
सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि पहला कॉलम खत्म हो गया, अब दूसरा कॉलम शुरू हो गया, दूसरा कॉलम खत्म हो गया, फिर तीसरा कॉलम शुरू हो गया? नो दी, सिस्टम कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी है कि उसको स्पेस दिखाई दे रही है। क्लियर? सो इट इज ए सिस्टम, तो उसके लिए ये पैरामीटर का यूज है, डिलिमीटर अंडरस्कोर वाइट स्पेस इज इक्वल टू ट्रू। तो हमने ये सप्लाई कर दिया, ये पैरामीटर बता रहा है कि डिलिमीटर मींस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के बीच में वाइट स्पेस इज एक्टिंग एज ए डिलिमीटर। डिलिमीटर मींस फर्स्ट और दूसरे को हमने कैसे ब्रेकअप करना है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से कैसे ब्रेकअप करना है। सो हमने इसकी वैल्यू क्या सेट कर दी? ट्रू। बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू विल बी फॉल्स। डिलिमीटर कुछ भी हो सकता है, डिलिमीटर कॉमा भी हो सकता है, डिलिमीटर कोई और भी साइन हो सकता है, डिलिमीटर स्पेस भी हो सकता है। सो डिलिमीटर हम खुद डिसाइड करते हैं कि वो क्या होगा। तो इस केस में हम डिलिमीटर किसको ले रहे हैं? स्पेस को, व्हाइट स्पेस को ले रहे हैं। क्लियर? और लास्ट पे है कि हमने नेम्स इज इक्वल टू एबीसी। नेम्स इज इक्वल टू एबीसी क्या है कि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने कॉलम सेट किए थे, कॉलम नेम, तो इसमें ए जो है वो फर्स्ट कॉलम का हेडिंग बन जाएगा, बी जो है वो सेकंड कॉलम का हेडिंग बन जाएगा, और सी जो है वो थर्ड कॉलम का हेडिंग बन जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस कोड विल बेसिकली will work. Clear? So now we will try to basically run this code. ठीक है, तो ये कोड है हमारे पास। तो इस कोड में मैंने क्या किया है, दैट इज नो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इज इंपोर्ट pandas, then is df is equal to pandas dot read underscore table। तो read underscore table है, this function is basically used to read the contents of a text file। Clear? Now the next is, ये हमारे पास first parameter है, so who will describe this first parameter is? Yes, anyone? So this first parameter is basically, हाँ, this is the, इसमें हमने path सप्लाई किया हुआ है, मींस कि ये जो ABCD फाइल है ये मेरे सिस्टम में D ड्राइव में पड़ी हुई है। So it is there on my D drive and the name of the text file is ABCD। Clear? And the delimiter here is delimiter underscore white space is equal to true। So I have already described what does this means, that how to basically differentiate first column from the second column। And then you have names is equal to ABC, means they will become the heading of this one। अगर आप इसकी जगह कुछ भी डाल दो, if you will be getting here roll number, रोल ही रहने देते हैं, you run this one, so you will find that the first column is now replaced with a roll। Clear? So this is very simple, and in the last line of code we have just printed this data frame। So the code is very, very simple, just you understanding is required, not any sort of cramming is required। Clear? So only what are the new things that today we have demonstrated, how to convert a text file into a data frame। The only precondition is there that the data should be there in the text file in the form of rows and column, then we can convert। अगर वो थ्योरेटिकल दिया हुआ है तो उसको हम रो एंड कॉलम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल डाटा को कैसे कर देंगे? इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, आप उसके अंदर थ्योरी लिखी हुई है। सो डाटा शुड बी देयर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स लाइक दिस। क्लियर? एंड देन हियर we will be using this white space as a separator। ये white space किसका काम कर रहा है? ये जो space है ये separator का काम कर रहा है। How will be separating one column from the another column। कई फाइल्स में कॉमा होता है, जैसे CSV फाइल्स, you know what is the full form of a CSV file is? पता है किसी को CSV फाइल की फुल फॉर्म क्या है? .csv फाइल का नाम सुना है आपने? सर एक्सेल में यूज होती है वो। हाँ, एक्सेल में यूज होती है। बेसिकली उस CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। तो उसकी प्रॉपर्टी यही है, दैट इज मींस द वैल्यूज इन दैट पर्टिकुलर फाइल आर बेसिकली सेपरेटेड बाय कॉमा। सो
here we are talking of a separator, and that separator is basically a space. Clear? And now we'll be going to that program. Clear? और जो third parameter है हमारे पास, the third parameter that we have defined the column heading with the help of this names attribute. तो 3 attribute use किए हैं इसके अंदर. One is the path of the file, where the file is residing on my system. The second is basically the delimiter. So delimiter we are using here, the white space is equal to true. So true means दो ही पैरामीटर, ट्रू और false. क्लियर? false means उस चीज को डीएक्टिवेट करना, और true means उस चीज को एक्टिवेट करना. और लास्ट पे है हमारे पास दिस नेम्स पैरामीटर. ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, तो इस डाटा से आप टेक्स्ट फाइल कैसे क्रिएट करोगे? इस डाटा की मैंने टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, कैसे करोगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ यू हैव बिकम सीरियस आफ्टर लिसनिंग द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वेरी इजी. पहले तो उसका पाथ लेंगे, उसके बाद डेलिमीटर और पाथ क्या देना? पाथ तो बाद की बात है. पाथ इज इनसिग्निफिकेंट. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक गिवन डाटा है, उस डाटा को आप एक टेक्स्ट फाइल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उस डाटा को .txt लगा के सेव करेंगे. और .txt किस में लगानी है? आप उसके लिए कौन सा टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा पैकेज यूज करोगे? सर वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर नोटपैड वगैरह. नोटपैड यूज करोगे. वर्ड इज नॉट बेसिकली इज ए प्रेफर्ड, सो यू शुड यूज नोटपैड. नोटपैड के अंदर आप इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दो. क्लियर? सो और उस फाइल को आप .txt एक्सटेंशन के साथ जहां पे भी आप सेव करोगे, तो उस पाथ को आपने मेंशन करना है इन योर प्रोग्राम. सो दैट्स हाउ वी क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल. ठीक है जी? भव्य ऐसे ही है? ठीक है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द CSV फाइल. हाउ टू basically convert a CSV file. You know that the next slide is there, that is create a data frame from CSV. ये जो फर्स्ट मेथड किया है हमने टेक्स्ट फाइल को, ये बड़ा कम यूज होता है. द सेकंड मेथड इज, दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड इज, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट ए डाटा फ्रेम फ्रॉम ए CSV फाइल. एक तो CSV फाइल की फुल फॉर्म आ गई है आपके सामने, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV. 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, CSV फाइल फुल फॉर्म. एंड इंपोर्ट डाटा फ्रॉम CSV फाइल. CSV फाइल से डाटा को इंपोर्ट करके डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना. दिस इज आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. यस, किसी को कुछ CSV फाइल की कुछ बैकग्राउंड पता है? किसी को, एनी स्टूडेंट हु नोज अबाउट समथिंग अबाउट द CSV फाइल? किस लिए यूज करते हैं हम CSV फाइल्स का? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, उसको सेव करते हैं CSV. बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज यू कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन ए CSV फाइल. CSV फाइल के अंदर आप काफी ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हो. दैट इज वी कैन नॉट स्टोर दैट सॉर्ट ऑफ डाटा इन बेसिकली टेक्स्ट फाइल और अदर फाइल्स. क्लियर? सो दैट इज द मेजर प्रॉपर्टी. Now moving on to, ये हमारे पास at the beginning you can say this is the ये जो डाटा पड़ा हुआ है CSV फाइल में पड़ा हुआ है, जिसके अंदर क्या है ये, ठीक है? इसकी जगह हम कोई और फाइल का यूज कर लेते हैं. I will show you some other file. Just wait.
Yes. So this is the CSV file that I have created. Clear? जैसे इसके अंदर एक और वैल्यू डाल देते हैं E and let's say this is 105 is the roll number, and let's say we enter here Ramesh, and let's say his marks is 27, and he belongs to Talwara. ये दिखाई दे रही है ये फाइल? Yes, sir. Yes, sir. Clear? Yes, sir. So I will now save the contents of this particular file. Clear? And this file is saved on the D drive of my system. Clear? So let us now we move to our program. तो ये है हमारे पास कोड ऑलरेडी. I have basically made the copy paste of the code. I have not created any. वहीं से मैंने स्लाइड से ही उठाया ये कोड. So this is the code that is create a data frame from a CSV file. ठीक है? ये सारा जो कंसेप्ट है आप लोगों के प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेगा. जैसे आप कोई एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, आपके पास क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है. सो यू हैव फेच्ड ए CSV फाइल. क्लियर? बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसके अंदर कोई एनवायरनमेंट के ऊपर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपने कोई इकोनॉमिक्स, कोई वर्ल्ड बैंक के सर्वे के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप यू कैन नॉट क्रिएट ए डाटा. आप डाटा कहां से लोगे? बिकॉज दैट डाटा कंटेन्स लेट्स से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है. तो आप क्या करोगे? आप तो उस डाटा को तो आप रेडीमेड यूज करोगे. क्लियर? सो यू कैन मेक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन दी एनालिसिस. उस तरह के प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट. ठीक है? तो ये जो काम है आपको प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेगा. कैसे? हाउ टू मेक दी बेसिकली एनालिसिस. जैसे हर्षित मेरे से एक दिन पूछ रहा था कि सर आई वांट टू मेक ए लाइब्रेरी बेस्ड प्रोजेक्ट. और लाइब्रेरी छोड़ दो, अब लाइब्रेरी 10-20 सालों से लोग लाइब्रेरी के ऊपर ही काम करी जा रहे हैं, और दैट हैज बिकम ए ऑब्सोलीट सॉर्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट. अगर हम पाइथन के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारा एम होना चाहिए दैट वी वांट टू मेक ए एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट. ठीक है? हर्षित, जो प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो ना, होटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये सारे कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट हैं. ये तो आप किसी दिन भी आप नेट पे जाओ, वहां से उठाओ और बोल दो सर मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है. सो देर आर 2 ways ऑफ मेकिंग दी प्रोजेक्ट्स. आप उसके अंदर काम करके कुछ सीखना चाहते हो, एक वो मैकेनिज्म है. दूसरा मैकेनिज्म है कि आपने सर ये कॉपी की, पेस्ट किया, सर ये देखो मैंने प्रोजेक्ट बना लिया. सो द चॉइस इज विद यू दैट यू वांट टू लर्न समथिंग और यू वांट टू गो विद द कॉपी पेस्ट मेथड. क्लियर? तो मेरा बस कहने का यही मतलब था कि ये आपकी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प करेगा आपको. सो now we will move to the coding part. ठीक है? तो this is a program to create a data frame from a CSV file. First step is import pandas as PD. Next step है हमारे पास read the data from a file. तो उसके लिए अब हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है कि जैसे पहले हमने यूज किया था मेथड read underscore table. तो read underscore table होता है हमारे पास किस काम के लिए होता है? टेक्स्ट फाइल के लिए. रीड अंडरस्कोर CSV मेथड होता है हमारे पास टू रीड द डाटा फ्रॉम ए CSV फाइल. CSV फाइल में से रीड करने के लिए हमें कौन सा मेथड चाहिए? रीड अंडरस्कोर CSV. और जस्ट उसके अंदर मैंने क्या किया है, उसका पाथ मेंशन किया हुआ है कि डी ड्राइव में फाइल का नाम है ABCD और उसकी एक्सटेंशन है .CSV. सो दिस इज द पाथ ऑफ द फाइल आई हैव मेंशन्ड, नथिंग एल्स. और ये ऑटोमेटिकली क्या कन्वर्ट हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड रीड अंडरस्कोर CSV, ऑटोमेटिकली ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा. और डाटा फ्रेम का नाम मैंने क्या रख दिया? डाटा. और फिर मैंने उसके ऊपर मेथड लगा दिया डाटा डॉट हेड. ये डाटा डॉट हेड का क्या मीनिंग होता है? It Yes. will give output of first 5 columns हाँ. and rows. तो जो भी मेरे पास अब डाटा फ्रेम बना है जिसका नाम अब डाटा है, उसकी टॉप 5 रोज को ये डिस्प्ले करवा देगा. ठीक है? तो अगेन आई एम जस्ट रीडिंग दिस कंटेंट्स. रीड द डाटा फ्रॉम द फाइल नेम
इन द सेम डायरेक्टरी, सो आप जहां पे आपकी पाइथन पड़ी है वहां पे भी आप इसको रख सकते हो. सो आई हैव स्टोर्ड इट ऑन द डी ड्राइव. देन इज कंट्रोल डिलिमिटर्स. ठीक है, तो डिलिमिटर्स मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकता है. व्हाइट स्पेस हो सकती है, कॉमा हो सकता है. देन रोज एंड कॉलम नेम्स विद द read underscore csv. so now we just run this code. ठीक है, तो ये कोड कैसे आ रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. ये आ रहा है हमारे पास फर्स्ट कॉलम, देन टैब, सो देन द सेकंड कोड, देन यू हैव क्लियर. ये इस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास. अगर हम इसकी वन रो को करते हैं, so we'll be looking at how the one row is displayed. ठीक है, so this was our basically question, that is to basically read the data from a CSV file and then just to display the contents. लेकिन इसमें ये tabular form में आ रहा है, that is we need to see how this is happening. हाँ जी, yes Shriya. Sir, can't we use this function that delimiters white space is equal to true? हाँ, वही मैं देख रहा हूँ इसके अंदर. पहले तो डाटा इसमें कॉलम फॉर्म में ही आ रहा था, इसमें जैसे टेबल में था, दैट इज फाइल में था, वैसे ही आ रहा था. ठीक है, तो उसका पैरामीटर हमें देखना पड़ेगा कि इसमें वो काम करता भी है या नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली एक प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में वो पैरामीटर की कोडिंग जरूरी नहीं है कि सेम तरह की है. सो वी मे ट्राई लाइक. ठीक है, तो लाइक द फार्मूला दैट यू हैव गिवन दैट हैज वर्कड. क्लियर. सो इसके अंदर हम डिलिमिटर क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज द व्हाइट स्पेस. क्लियर. सो दैट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल्स आर बेसिकली whatever the contents you have entered, they have now come here. ठीक है, आप अगर इसके अंदर स्पेसिफिक मेंशन कर दोगे, लाइक वी मेंशन हियर, वैसे रोज हैं इतनी इसके अंदर हमारे पास. सो अगर आप इसके अंदर 4 एंटर करोगे, सो यू विल फाइंड दैट 4 rows are basically displayed here like this. Clear. So the most important thing here is that is how we are going to basically, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जितने भी हमारे पास एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, उसमें डाटा मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज देयर इन द CSV फाइल, या CSV फाइल में होगा या किसी एक्सेल फाइल में होगा. तो उस डाटा के ऊपर कैसे हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, एंड वी हैव टू अप्लाई द डिफरेंट ऑपरेशंस. अभी तो सिर्फ हमने 2 ही ऑपरेशंस किए हुए हैं, हेड एंड टेल. हेड इज बेसिकली पिक्स अप द डिस्प्लेस द डाटा एंड एक्सट्रैक्ट्स द डाटा फ्रॉम द टॉप साइड, और टेल फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज इट डिस्प्लेस द डाटा फ्रॉम द bottom side. Then we can apply different operations also, like we have said, we can go for the different mathematical and other arithmetic operations. जैसे aggregate function है हमारे पास, aggregate function है average calculate करने के लिए, mean calculate करने के लिए, mode calculate करने के लिए, standard deviation find out करने के लिए. So we have numerous methods are available in Python that we can, जैसे हमें जिस तरह की requirement है उस तरह की ऑपरेशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं. सो द बेसिक शुड बी क्लियर, दैट इज हाउ टू रीड द डाटा फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल एंड हाउ टू रीड द डाटा फ्रॉम ए CSV फाइल एंड अप्लाई द हेड एंड टेल फंक्शंस. आप इसके ऊपर टेल अप्लाई करोगे, सो
यहाँ पे तो कोई टेल का इतनी सिग्निफिकेंस है ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसने बॉटम साइड से 4 रोज को डिस्प्ले कर दिया है, और ये जो 5th रो है इट हैज बेसिकली लेफ्ट दैट रो। क्लियर? तो ये हेड एंड टेल बेसिकली दे बिकम सिग्निफिकेंट functions when we basically come across a huge amount of data. Clear? So I request you that you basically practice a bit. Clear? Because now I am using this for last number of days, तो मेरे लिए थोड़ा easy है। तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा इफ यू वांट टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। वैसे अगर किसी का दिल करता है कि मैंने लाइब्रेरी बेस्ड ही प्रोजेक्ट बनाना है, होटल मैनेजमेंट के ऊपर बनाना है, और मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को, जैसे कोई भी आप अप्लाइड चीज के ऊपर ले लो, जैसे आप किसी दुकान की बिलिंग के ऊपर बना रहे हो कि बिलिंग का आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, या आप इन्वेंट्री के ऊपर बना दिया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नाम सुना है? व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट? और कभी आप जैसे ये इजी डे मोर इन स्टोर्स के ऊपर जाते हो, तो बेसिकली दे मैनेज देयर इन्वेंट्री, सर ठीक उनका है। जो स्टॉक होता है, हाँ, उनका जो स्टॉक बेसिकली क्या होता है कि जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने किसी भी, जैसे आप लेट से आपका मोर का स्टोर है या इजी का स्टोर है, तो आप भी तो किसी ना किसी से सामान ले रहे हो या नहीं ले रहे, ठीक है। किसी मल्टीपल कंपनी से आप सामान बाई कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू मेक ए ऑर्डर बिफोर द स्टॉक इज फिनिश्ड। ये थोड़ी है कि जब आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा तब आप बोलोगे ओहो कि हमारा तो स्टॉक खत्म हो गया, अब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, बिकॉज व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड वो उसके 3-4 दिन बाद आपकी दुकान पे आएगा, ठीक है। और जैसे बीच में भारत बंद हो गया तो 3-4 दिन की जगह 1 आधा दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा आपकी दुकान में आते आते। क्लियर? तो दैट इज नो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। बड़ी इंटरेस्टिंग भी है ये प्रॉब्लम, मतलब कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर पीपल आर बेसिकली गोइंग ऑन द रिसर्च ऑन दिस आल्सो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपने कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। हाउ द कॉस्ट इज मिनिमाइज हियर इन दिस केस, कि आप इतना ज्यादा भी सामान ना मंगवा लो कि पता लगे और 2 साल तक वो फिनिश ही नहीं हो रहा, ठीक है। और इतना कम भी नहीं मंगवाना कि आपने आज ऑर्डर प्लेस किया है और कल खत्म हो गया फिर आप नेक्स्ट डे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, बिकॉज उसके अंदर रीऑर्डर की भी कॉस्ट है। रीऑर्डर फ्री नहीं है, रीऑर्डर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है उसके लिए। सो दैट्स ए वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ ए अप्लाइड। आप ऐसे और भी रियल लाइफ में से और भी एग्जांपल्स को लेके आप उनके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हो। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोजेक्ट के ऊपर आपने एक रेलेवेंट टाइम इन्वेस्ट करना है। ये नहीं है कि आपने बाकी काम छोड़ दिया, आपने फिजिक्स छोड़ दी, केमिस्ट्री छोड़ दी और आप प्रोजेक्ट बनाने लग पड़े, और बाद में पता चला प्रोजेक्ट अच्छा बन गया है और सर बाकी सब्जेक्ट के लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा। सो यू हैव टू बेसिकली मेक ए ट्रेड ऑफ कि कैसे आपने प्रोजेक्ट भी आप थोड़ा अच्छा बना लो और अपने बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आप अच्छी तरह से काम कर लो। सो यस, और कोई आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू व्हाटएवर वी हैव कवर्ड टुडे? यस, मन्नत क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा अगर आप इनिशियली काम कर लोगे तो क्लियर और ऑल क्लियर में डिफरेंस जो है वो बना रहेगा। सो आई ओनली रिक्वेस्ट यू दैट यू मेक इट क्लियर ओनली। अगर ये ऑल क्लियर करते रहोगे साथ साथ में, सो देन यू विल फाइंड द डिफिकल्टी कमिंग। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन। सो नाउ यू कैन गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. थैंक्स बेटा। Have a nice day.